The question who are the Assamese people has always been contentious. Now, a definition has been proposed by a committee that looked into implementation of clause 6 of the Assam Accord. What is the clause? What are the proposed definition? And what are the implications? We'll try to cover all these things in this video. We'll also try to draw our attention to the background of Assam Accord of clause 6. But before we begin, I request you to subscribe to this channel for more videos. And if you like our work, if you like our video, then do like and comment. So let's start. In the picture, as you can see, it's a signing of Assam Accord in 1985. You can see here Rajiv Gandhi, the then Prime Minister, the members of Assam government and the leaders of Assam agitation or Assam movement. So Assam Accord was a memorandum of settlement that has been signed between the government of India and the leaders of Assam movement in New Delhi on 15th August 1985. Before we delve into the Assam Accord, it's worthy to know the Assam movement. Assam movement के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है. तो असम मूवमेंट और असम या फिर असम एजिटेशन जो भी आप कहे, वो शुरू हुआ था 1979 में और इट कंटिन्यूड टिल साइनिंग ऑफ दिस वेरी असम अकॉर्ड. इट वाज ethno nationalist movement against the Bengalis in Assam, some of whom were recent immigrants from Bangladesh. And the movement reached its peak in 1983 with the Nelly massacre, which claimed the lives of more than 2,000 people in Assam. So the parties to this agitation or to these movements were the All Assam Students Union, आशू के नाम से जो जाने जाते हैं, और थे ऑल असम गण संग्राम परिषद. ये दो इस मूवमेंट को लीडरशिप दे रहे थे. तो दिस अकॉर्ड ब्रॉट एन एंड टू द असम एजिटेशन एंड paved the way for the leaders of agitation to form a political party and form a government in the state soon after, जो कि हुआ भी 1986 में असम गण परिषद के द्वारा ही असम में स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया था. तो उस मूवमेंट का डिमांड ये था कि आप विदेशियों को डिटेक्ट करें, विदेशियों को डिपोर्ट करें असम से, ताकि इंडिजिनस लोगों का सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफगार्ड ये हम इंश्योर कर सके, या फिर सेफगार्ड गवर्नमेंट इंश्योर कर सके. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, all those foreigners who entered Assam between 1951 and 61 were to be given full citizenship including the right to vote. ये था उनका डिमांड. और क्या था? The entrants between 1966 and 71 were to be denied voting rights for next 10 years, and but other than voting rights, all other rights as a citizen of India should be given to them. यानी 1966 से लेके 1971 के बीच जो लोग आए हैं उनका सिर्फ वोटिंग राइट्स आप 10 साल के लिए ले लीजिए, बाकी जो राइट्स हैं एज ए सिटीजन वो बरकरार रहे. For the purpose of deletion and detection of foreigners, 1/1/1966 shall be the base data and base year. This is very important to be mentioned कि 1966 का 1 जनवरी को ही आप बेस डेटा
and A.R. Mane for the pattern and detection of for the purpose of deletion and detection of the foreigners. The person who came to Assam prior to 1966 1st January, including those whose names appeared on the electoral rolls in 1967, should be regularized. उनको आप मत निकालिए जो 1966 के पहले आए हैं या फिर जिनका नाम 1967 के इलेक्टोरल रोल में आया है. अभी फॉरेनर जो 1966 के पहले जनवरी के बाद और 24 मार्च 1971 तक आए हैं, उनको आप फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत डील कीजिए. उनको क्या कीजिए, आप उनको 10 साल के लिए, मैं ये दोहरा रहा हूँ, उनको आप 10 साल के लिए उनका वोटिंग राइट्स आप ले लीजिए, लेकिन बाकी सभी राइट उनका रहना चाहिए. एंड इट वाज डिमांडेड फॉर द पर्पस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अंडरटेक सुटेबल स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी. तो इस एकॉर्ड का क्लॉज 5 जो है वो फॉरेनर्स इशू को एड्रेस करता है, और क्लॉज 6 जो है इट एम्फासिसेस ऑन सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्लॉज 6 and 7 सॉरी. तो क्लॉज 6 जो है दिस टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव safeguards as may be appropriate shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people. तो यही है क्लॉज 6 जिसका हम बात कर रहे हैं कि जो इंडिजिनस पीपल है उनको आप क्या कीजिए, सेफगार्ड कीजिए. कैसे सेफगार्ड कीजिए? उनका कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अधिकार है उसको बरकरार रखिए या फिर उसको बढ़ाइए, और ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि क्या हो, उनका कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी बनी रहे. क्लॉज 6 जो है दिस टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट द emphasis on education of science and technology. Other issues as can be seen in the clause 8, 9 and 8, 9, 10, 11 and 12 of the accord deal with miscellaneous topics, and the government in this accord has at that time promised to set up in Assam one oil refinery, and it promised to reopen the Ashok pepper mill and jute mills, along with introduction of one IIT in Assam. इस एकॉर्ड के तहत ये भी मतलब एग्रीमेंट हुआ कि इंडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट इशू करे इंडिजिनस सिटीजन्स के लिए, जिससे कि जो विदेशी नागरिक है उनका शिनाख्त ईजिली हो सके. क्लॉज 9 में there were demands of international border of making it secure against future infiltration by erection of physical barriers like walls, barbed wire fencing and other obstacles at appropriate places. Clause 9 में a road all along the international border shall be constructed, इसका भी प्रावधान था. क्यों? So as to facilitate patrolling by the security forces. Clause 10 जो है इसमें बताया गया कि law should ensure for prevention of encroachment of government lands in tribal areas. Clause 11 जो है ये बताता है कि ये गवर्नमेंट इंश्योर करे कि या फिर ये गवर्नमेंट इंश्योर कर रहा है कि the relevant law restricting acquisition of immovable property by foreigners in Assam is strictly enforced. यानी जो immovable property है, आप जमीन को भी ले सकते हैं,
The acquisition of such immovable property by the foreigners is strictly enforced. और क्लॉज 12 जो है, this ensures that the birth and death registers are duly maintained so that in due time the identification of citizens as foreigners and indigenous can be done easily. In this very slide, I have attached the copy of Assam Accord. You can see here. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि these are the background that the government has provided कि इसी कारण के लिए हम असम अकॉर्ड कर रहे हैं, इसी कारण के लिए हम असम अकॉर्ड कर रहे हैं. ये चीज़ बहुत ही मतलब बारीकी से देखना ज़रूरी है. गवर्नमेंट बता रही है कि गवर्नमेंट हैव ऑल अलोंग बीन मोस्ट एंग्शियस टू फाइंड ए सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेनर्स इन असम. यानी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही मतलब चाह से ये मतलब ढूंढ रही थी कि हम एक सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन पा सके. द ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन एंड द ऑल असम गण संग्राम परिषद have also expressed their keenness to kind such a solution. और जो अल असम स्टूडेंट्स यूनियन है और जो अल असम गण संग्राम परिषद है, उन्होंने भी कंसर्न जताया कि हाँ, आप अगर इसका सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं या फिर ढूंढना चाहते हैं तो ठीक है, हम हमारे तरफ से भी कोई ना नहीं है. अगर आप ऐसा कुछ मतलब फ्रेम कर सके कि जिससे हमारा भी मतलब राइट्स बावजूद मतलब बरकरार रहे तो ठीक है, यू आर वेलकम. आप 2 नंबर पे देख सकते हैं, द आसू थ्रू देयर मेमोरेंडम डेटेड 2 February 1980 presented to the late Prime Minister Srimati Indira Gandhi conveyed their profound sense of apprehensions regarding the continuing influx of foreign national into Assam and the fear about adverse effect upon the political, social, cultural and economic life of the state. आशु ने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट 2 फरवरी 1980 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को एक मेमोरेंडम के ज़रिए बताया कि हम बहुत चिंतित थे, किसलिए क्योंकि विदेशी नागरिक जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो बहुत ढेर में असम में आ रहे हैं, जिससे क्या है हमारा जो पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ है या फिर राइट्स है इंडिजिनस पीपल का, वो मतलब खतरे में आ रहा है. 3 नंबर पॉइंट पे आप देख सकते हैं, बीइंग फुली अलाइव to the genuine apprehensions of the people of Assam, the then Prime Minister initiated the dialogue with ASU and AAGSP. Subsequently, talks were held at the Prime Minister's and Home Minister's level during the period 1980 to 83. तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके द्वारा 1980 से लेकर 83 तक डायलॉग्स की शुरुआत किया गया था, जिसमें आशु और AAGSP का मेंबर को भी इनवाइट किया गया था. So several rounds of informal talks were held during 1980. Formal discussions were resumed in March 1985. 1983 के बाद मार्च 1985 में formal discussion फिर से चालू हुआ. Keeping all aspects of the problem, including constitutional and legal provisions, international agreements, national commitments, and humanitarian conditions, it has been decided to proceed as follows. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कुछ बातें मेंशन कर रही है कि हाँ, हम मान रहे हैं कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस को, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को, नेशनल कमिटमेंट्स को और ह्यूमैनिटेरियन बातों को भी, इन सब को हम देखते हुए ये अकॉर्ड में हम ये प्रावधान ला रहे हैं. तो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान लाया गया है. तो ये सिर्फ ये समझाने के लिए था कि किन किन कंडीशन के चलते हुए सरकार ने ये अकॉर्ड लाया था. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी जो था वो
सरकार का बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कंडीशन था इस एकॉर्ड को लेके या फिर इस एकॉर्ड को लाने के लिए. सो देयर वर some conditions regarding restoration of normalcy in the state, जिसको क्या मतलब both the parties agreed upon. तो ये आप देख सकते हैं कि क्लॉज 13 और 14 में ये बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन किए गए हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं. क्लॉज 13 में गवर्नमेंट ने ये डिमांड किया कि द ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन एंड द ऑल असम गण संग्राम परिषद call of the agitation, assure full cooperation and dedicate themselves towards the development of country. 14 में आप देख सकते हैं the central and the state government have agreed to number A, review with sympathy and withdraw cases of disciplinary action taken against the employees in the context of agitation and to ensure that there is no victimization. यानी जो भी मतलब एजिटेशन में जो भी लोग थे जिनको मतलब कानूनी कार्रवाई जिनके ऊपर होने वाला था एजिटेशन के साथ जुड़ने के लिए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाने के लिए, तो उनको क्या किया जा रहा है कि सिंपैथी के साथ उनका केस जो है वो विड्रू किया जा रहा है और देयर इज नो विक्टिमाइजेशन, सभी विक्टिमाइजेशन को खारिज कर रहे हैं. बी में आप देख सकते हैं कि फ्रेम ए स्कीम फॉर एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू द नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ दोज हु किल्ड इन द कोर्स ऑफ एजिटेशन के कारण जिन लोगों का डेथ हो गया है उनके अभी फैमिली में जो है उनको एक पेमेंट दिया जाएगा. सी में आप देख सकते हैं कि गिव सिंपैथेटिक कंसिडरेशन to proposal for relaxation of upper age limit for employment in public services in Assam, having regard to exceptional situation that prevailed in holding of academic and competitive examination etc. in the context of agitation. तो एजिटेशन के कारण क्या हुआ, आप असम पब्लिक सर्विस की बात कीजिए या फिर दूसरे सारे जो एग्जाम्स है वो नहीं हो पाया था, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि हम सिंपैथेटिक कंसिडरेशन दे रहे हैं फॉर रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट. डी में आप देख सकते हैं कि टू अंडरटेक रिव्यू ऑफ डिटेंशन केसेस इफ एनी एज वेल as cases against persons charged with criminal offences in connection with agitation except those charged with commission of heinous offences. heinous offences वाले जो मतलब लोग हैं जिनको मतलब क्रिमिनल माना जा रहा है उनको छोड़कर बाकी सभी को मतलब we will review the detention of those persons and if we feel that they are not related to any kind of criminal offences then for the sake of sympathy we will free them. डी में ये था. ई में ये बताया जा रहा है कि कंसिडर विड्रॉल ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स नोटिफिकेशंस इन फोर्स इफ एनी. तो जो कि एजिटेशन के दौरान जो भी ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस लाया गया था प्रोहिबिटरी नेचर का उन सभी को विड्रॉल मतलब के लिए कंसिडर किया जाएगा. तो ये जो सारे कंडीशंस है वो इसीलिए लाए गए क्योंकि नॉर्मलसी जो है. सो दीज वर द कंडीशंस that were agreed upon by the parties and that ensured the restoration of normalcy. तो जैसे कि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो डिटेल में जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये हम ऐसा सोचते हैं. नॉट ओनली फॉर जनरल इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ऑल्सो हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि द पर्सन्स हु आर रिलेटेड टू एजुकेशन आर आवर ऑडियंस. सो हम डिटेल में इस टॉपिक को स्पेशली आपके पास मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो विल एंड टुडे हियर एंड विल कंटिन्यू इन अदर पॉइंट्स. ओके, सो तब तक के लिए खुश रहिए और अगर आपको अच्छा लगा हाँ अगर बुरा भी लगा तो भी आप फीडबैक के तौर पे कमेंट पे हमको बताइए. और इस टॉपिक का जो सारे पार्ट्स है वो आने के बाद अगर आप चाहे तो
हम जिन मटेरियल्स के ज़रिए इस रिपोर्ट को बना रहे हैं या फिर इस प्रेजेंटेशन को बना रहे हैं वो आप तक पहुंचा सकते हैं, आप हमको मेल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी इससे सुविधा मिले और कंपाइल्ड एक फाइल या फिर कंपाइल्ड डेटा आप पा सकें। तो थैंक यू ऑल।